Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Everyone, dear colleagues, I am Dr. Asim bin Zafar, and I work in Baqai Institute of Diabetology and Endocrinology as a consultant diabetologist, and I am Associate Professor of Medicine in Baqai Medical University. And I am the designer and coordinator of this comprehensive course of diabetes. And my talk will be on the introduction of this course and the description of this course and what are the objectives of this course. So I will briefly discuss about the description and the objectives of this course, and then it will be followed by the brief introduction of diabetes. What is diabetes? What is the definition of diabetes? But not in detail, because we have 4 weeks, 4 modules, and in the subsequent lectures, we will discuss comprehensively about diabetes. So my talk will be followed by the second half of my talk will be on the prevalence of the disease, that is of diabetes, and what are the risk factors. What are the risk factors which can lead to the pre-diabetes and diabetes? And then briefly I will discuss the classification of the disease. So I will start with this module 1. This is my introduction, and now I am going to describe the course description and what are the objectives. So this comprehensive course is designed to provide knowledge, skills, and tools to effectively diagnose, treat and support people with diabetes. तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कोर्स हम पूरा 4 हफ्ते का आपके साथ करेंगे, 4 मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड किया है। तो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें नॉलेज प्रोवाइड की जाए प्राइमरी केयर फिजिशियंस को, स्किल्स डेवलप हों, एंड टूल्स कौन से हों जो कि इफ़ेक्टिवली डायबिटीज़ को डायग्नोस कर सकें, डायबिटीज़ को मैनेज कर सकें, एंड कैसे हम सपोर्ट करें डायबिटीज़ के लोगों को। तो इस पर ये हमारा पूरा कोर्स जो है, जो 4 हफ्ते का कोर्स है, ये पूरा इस पर स्प्रेड होगा। सो the objectives after the completion of this course, the primary care physicians will be able to know the epidemiology of the diabetes, to understand the pathophysiology of the diabetes mellitus, 3, to diagnose diabetes and pre-diabetes, and will be able to understand what are the complications of diabetes. And primary care physicians will be able to develop individualized treatment plans for patients with diabetes, and also will be able to implement evidence-based approaches to glycemic control and the holistic approach of diabetes mellitus. So the course will be consisting of especially we will be focusing on the self-management of the diabetes, and we have to educate people how to manage this disease by their selves, and how to recognize and manage diabetes related complications and comorbidities which are associated with diabetes mellitus, and to know the latest advances in the diabetes research, medications and technologies, यानी जो
करंट रिसर्च हो रही है इस वक्त, उस पर हम बात करेंगे। मेडिकेशंस, जो नई नई मेडिकेशंस आ गई हैं फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, उनके ऊपर बात होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द टेक्नोलॉजीज़। तो टेक्नोलॉजीज़ is also playing very important role in the management of diabetes. Then फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि what is collaborative relationships, यानी to work together with other healthcare providers. तो इस सब चीज़ों के ऊपर इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे। तो ये मैं ब्रीफली वन बाय वन जो मैंने आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन दिया उसको मैं आपको, यानी सेल्फ मैनेजमेंट, diabetes related complications, and what are the latest advances in research, medications and technologies, and what is collaborative relationship, इस इन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली एलेबोरेट करूंगा। और ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हमारे जितने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उसमें एलेबोरेट हो जाएंगे। सो दिस DSMES, ये आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट ये एड्रेस करता है, यानी उन एस्पेक्ट्स को जिसमें हमें क्लिनिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर जो फिजिशियंस हैं उनको जो है ये पूरा नेविगेट करना आ जाए। एजुकेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइको सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। अब ये सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दे विल प्रोवाइड द फाउंडेशन टू हेल्प ऑल पीपल, यानी जो प्राइमरी केयर हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं जब वो इन एस्पेक्ट्स को, एजुकेशन की एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेंगे टू हेल्प पीपल विद डायबिटीज़ टू नेविगेट देयर डेली सेल्फ केयर विद कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव्ड आउटकम्स। तो इन पॉइंट्स के ऊपर, जब इन एस्पेक्ट्स के ऊपर प्राइमरी केयर हेल्थ केयर फिजिशियंस अलॉन्ग विद डायबिटीज़ एजुकेटर्स पेशेंट्स को सेल्फ एम्पावर करेंगे, द पीपल विद डायबिटीज़ विद कॉन्फिडेंस अपनी ट्रीटमेंट वो खुद भी इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे, यानी बाख्तियार हो जाएंगे कि वो खुद अपनी जो मेडिसिन्स की डोज है और डाइट है और यानी एक्सरसाइज है उसको वो खुद समझेंगे, उस पर एक्ट करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें हमारे जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। सो दी सेल्फ मैनेजमेंट मॉड्यूल, इसको ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल क्या है। तो इसके अंदर जो हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स एंड प्राइमरी केयर फिजिशियंस पेशेंट को एडवाइस करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज का, यानी लॉग बुक बनानी पेशेंट्स को, ये हमें उनको एजुकेट करना होगा। फिर हमारे जो डाइटिशियंस हैं वो बैलेंस डाइट क्या होती है, अप्रोप्रिएट पोर्शन साइज़ क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव टू इंगेज इन पीपल विद डायबिटीज़ इन रेगुलर एक्सरसाइज दिस प्रोग्राम। एंड हम उनको ये एजुकेट करवाएंगे थ्रू प्राइमरी केयर फिजिशियंस, जो कि आप लोगों को समझनी है ये बात, और हमारे जो डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं कि डिहाइड्रेशन को कैसे अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन हो सकता है कि अभी आपके जहन में आइए डिहाइड्रेशन ये कहाँ से आ गया, तो क्योंकि अब ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जो कि पॉलीयूरिया करती हैं, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कि या टाइप 2 के अनकंट्रोल्ड हैं, तो ऐसे पेशेंट्स डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो उनको एजुकेट करना कि दे शुड हैव टू टेक plenty of water, and also in the self management taking medications as prescribed, यानी उनको ये एम्पावर करना कि जो मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब हो रही हैं उनको रेगुलर उनको लेना होगा। एंड ये भी उनको हम एजुकेट करेंगे कि कैसे मेडिकेशंस को की डोज को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो कि उसकी डोज को एडजस्ट करना होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है डोज। वो ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट को अगर जो हमने डोज दे दी इंसुलिन की वही एक पेशेंट को वो जो फार्मूला अगर हमें बता दिया गया है उस फार्मूले के ऊपर फिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, डोज एडजस्टमेंट करनी होती है। इसी तरीके से यानी वी हैव टू एजुकेट थ्रू प्राइमरी केयर फिजिशियंस के पेशेंट की फुट केयर कैसे हो, एंड ऑल्सो
how to monitor other signs and symptoms caused by diabetes, स्पेशली कॉम्प्लिकेशंस के जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनको कैसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। अब सेकंड पॉइंट जो हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया था वो कॉम्प्लिकेशंस है, एंड यू नो ऑल वेरी वेल ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर। इस पिक्चर के अंदर आप, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि डायबिटीज़ can lead to kidney problem, diabetic, which is known as diabetic nephropathy. Similarly, nerve damage, this is very important complications we should know, जिसे हम diabetic neuropathy कहते हैं. Similarly, eye problems, diabetic retinopathy, cardiovascular disease, which is the top leading cause of death in diabetes, is the cardiovascular disease, which comes in the macrovascular disease, and also stroke, which also comes in the macrovascular disease. So as we all know, the diabetes is a macro and microvascular disease. So all these complications will lead to, along with some comorbidities like hypertension, diabetic patient may have hypertension, may develop skin problems because of the hyperglycemia, and the diabetic foot ulcer because of neuropathy or peripheral artery disease. And this is the problem. In the last two pictures, you can see the amputation of the limbs. Every 20 seconds in our world, a patient is losing leg in 20 seconds, and this is a very serious problem. And the vision loss, the most common cause of vision loss in our world is diabetes. So these are the complications. We have to address these complications. And the third point was, what are the latest researches and medications and technologies in this field. So this will also be discussed, especially these technologies like CGM, continuous glucose monitoring, and this in picture you can see this is Libre style, Flash Libre. This is a device. You can see up in the upper arm the sensor and the device. By this continuous glucose monitoring, हम इसको यानी daily basis के ऊपर and on every hour we can see on the device, or we can download the app in our smartphone, and the patient can have his blood sugar level. So इसको हम और डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजीज़ को. तो ये लेटेस्ट चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ की हम इसको अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सिमिलरली जो नई ड्रग्स जो अब मार्केट में आ गई हैं और रिसर्च और जो कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल्स ने हमें इन ड्रग्स की जो इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, उसमें GLP-1 एगोनिस्ट है, GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एंड SGLT2 इनहिबिटर्स. इन ड्रग्स की वजह से बहुत रिमार्केबल चेंजेस आई हैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के अंदर. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट जो डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट, द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप. तो इसको भी समझना है कि कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि टू वर्क टुगेदर, एंड इट विल फैसिलिटेट द मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड शेयर डिसीजन मेकिंग. तो ये देखें, इतने सारे लोग एक पेशेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मुख्तलिफ यानी फील्ड से हैं. कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट है, नर्स है, पोडियाट्रिस्ट है, वैस्कुलर सर्जन है. सब लोग मिलकर जो है कोलैबोरेटिवली पेशेंट की मैनेजमेंट करेंगे. So this was the course description. Now I am very briefly going to start about the diabetes mellitus. This diabetes mellitus is not a single disease, is a group of metabolic disorders, multiple disorders which occur in this disease. But as far as the definition is concerned, तो हमें प्राइमरी केयर फिजिशियंस को ये यानी बेसिक डेफिनेशन डायबिटीज़ की पता होनी चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या. दिस इज़ अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ दैट अकर्स ईदर व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. या तो जो बीटा सेल फैक्ट्री है, या तो उसमें सेक्रेटरी डिफेक्ट हो गया है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और
सेकंड जो मैकेनिज्म है जो कि उसके बैकग्राउंड में है, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है, कि व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, एंड दिस इज कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, insulin is the beta cells producing the insulin, but the insulin is not working on the target receptors and not unlocking the gates to enter the insulin to enter the glucose into the cells, and this is called the insulin resistance. So briefly this is the definition of diabetes. कि इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दो डिफेक्ट हैं मेन, यानी एक सिक्रेटरी डिफेक्ट है एंड दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस है. सो देन नाउ आई विल डिस्कस द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज. तो बिफोर आई गिव यू द प्रेवलेंस ग्लोबल एंड द रीजनल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज, मैं चाहूँगा कि प्रेवलेंस और इंसिडेंस के अंदर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंफ्यूज हो जाते हैं. So the prevalence means the proportion of a population with a disease or a particular condition at a specific point in time or over a specified period of time. यानी एक population, किसी एक population के अंदर और a specified period के अंदर जो हम proportion देखते हैं disease का, जैसे हम diabetes की बात कर रहे हैं तो उस diabetes का जो proportion है उसको हम, this is called the prevalence. So the global, what is the global prevalence of diabetes? The global prevalence, ये बहुत serious, बहुत alarming बात है कि 10.5% of the adult population, the adult means between 20 to 79 years, has diabetes with almost 50% unaware of it. ये एक और alarming चीज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो कि they don't know, they are unaware of it. And by 2045, IDF projections show that 1 in 8 adults, approximately 783 million, will be living with diabetes, an increase of 46% of the condition. तो ये कितनी अलार्मिंग चीज़ें हैं अगर हम पूरी दुनिया की ग्लोबल बात कर रहे हैं और ये पूरी वर्ल्ड जो है ये इसकी हम बात कर रहे हैं. तो डायबिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त 500 million लोग जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज़ के अंदर मुतासर हैं, यानी 536 million adults are living with diabetes, and by 2030 it will raise to 643 million, and the total numbers by 23 and 783 million by 2045, and 3 in 4 adults with diabetes. ये और अलार्मिंग चीज़ है. जिस एरिया के अंदर हम रह रहे हैं उसको हम मीना रीजन कहते हैं, and this is also known as low and middle income countries. 3 in 4 adults with diabetes live in low middle income countries, and this comes in the MENA region. इस पिक्चर के अंदर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन ये जो बीच वाला लाइट ब्राउन जो सर्किल है उसमें आप इसको देख सकते हैं, द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका, दिस इज़ आवर रीजन, ये हमारा रीजन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़. 73 मिलियन डायबिटिक्स हैं इस पूरी मीना रीजन के अंदर. तो ये रिपीटिशन है वही जो मैंने अभी आपको बता दिया कि 500 million लोग पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज़ के अंदर मुतासर हो चुके हैं. 3 in 4 adults with diabetes they live in lower middle income countries, and 6.6 million deaths due to diabetes in 2020. 2021 में 6.7 मिलियन लोग मरे थे. और इससे भी अलार्मिंग बात मैं आपको और बता दूं कि इस वक्त जो एस्टिमेट है हर 5 सेकंड के अंदर पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर one person is dying due to diabetes. हर 5 सेकंड के अंदर every 5 seconds one person is dying due to diabetes. So the MENA region की जो फिगर्स हैं वो भी और अलार्मिंग है कि 1 in 6 adults are living with diabetes. The number of adults with diabetes expected to reach 95 million. 2030 में 95 मिलियन हो जाएंगे, और 2045 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 136 मिलियन हो जाएंगे. And 1 in 3 adults living with diabetes are undiagnosed. This is also very alarming for the health care community. And 7 lakh
96,000 deaths caused by the diabetes in 2021. 1 in 7 live births, ये एक और अलार्मिंग चीज़ है कि 1 in 7 live births affected by hyperglycemia. प्रेगनेंसी के अंदर हर 7 औरतों में से एक जो बर्थ हो रही है, एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है. तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ डायबिटीज ओवर ईयर्स. ये जो अब तक जितना मैंने आपको बताया ये स्टेप लैडर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉकेट हाई जो इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का वो बढ़ता चला जा रहा है. अगर हम 2000 में देखें तो 151 मिलियन और 2040 की अगर हम बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं तो वो 700 मिलियन को पहुंच जाएगा. अब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन पाकिस्तान. ओवरऑल ये हमारा जो सेकंड नेशनल डायबिटीज़ सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ, ये उसकी रिपोर्ट है. ओवरऑल 26.3% ये प्रेवलेंस रेट है और 19.2% नॉन डायबिटीज़ हैं, 7.1% न्यूली डायग्नोज हैं. टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर हम लगाएं पाकिस्तान के अंदर तो 3,30,00,000 लोग पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ के अंदर मुतासिर है. और ये फिगर अगर हम इसको जैसे जैसे यानी ईयर बाय ईयर अगर हम इसको लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगी. ये और भी इंटरेस्टिंग ये स्टडी हुई थी जो कि इट वाज कंडक्टेड बाय वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स, अ ग्रुप supported by the Georgia State University Department of Mathematics and Statistics, shows Pakistan has a diabetes prevalence rate of 30.8%, the highest in the world. तो ये उनकी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की, जो कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूएसए की. तो उन्होंने जो रिसर्च यानी जो सर्वे किया उसके हिसाब से पाकिस्तान इज हैविंग हाईएस्ट प्रेवलेंस रेट इन द वर्ल्ड. तो दिस इज वेरी अलार्मिंग. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज. रिस्क फैक्टर्स, इससे पहले ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जो आपको नजर आ रहे हैं: sedentary lifestyle, overweight and obesity, family history, urbanization, elderly population, previous impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance. लेकिन before I discuss about the risk factors, ये हम थोड़ा सा चाहते हैं कि प्राइमरी केयर फिजिशियंस जो हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको ये पता हो कि रिस्क फैक्टर्स, ऑल्दो वी ऑल नो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि रिस्क फैक्टर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक, इज़ ए कंडीशन ऑफ बिहेवियर दैट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिजीज. तो रिस्क फैक्टर्स मे प्रेजेंट इंडिविजुअली बट दे ऑफ्टन को एग्जिस्ट एंड दे इंटरैक्ट विद वन अनदर. तो ये रिस्क फैक्टर्स दे मे प्रेजेंट यानी कि दे को एग्जिस्ट, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ एक, जैसे हम अब डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और ये कंपाउंड कर देते हैं डिजीज़ की प्रॉब्लम को. जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल एक रिस्क फैक्टर हम लगा लें कि हम फिजिकल इनएक्टिव, हम यानी हमारी कौम जो है फिजिकली इनएक्टिव है, एक्सरसाइज का जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ रुझान नहीं है, लोग एक्टिविटी नहीं करते, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. तो फिजिकल इनएक्टिविटी क्या करेगी? विल ओवर टाइम will cause weight gain, high blood pressure and high cholesterol, and these will increase the chances of developing diabetes and heart disease. तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिस्क फैक्टर्स दूसरे रिस्क फैक्टर को जन्म देता है. तो अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ये हम यूज़ करते हैं सेडेंटरी, लेकिन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है क्या? आप इन पिक्चर्स के अंदर देखें, ये साहब बैठे हुए लैपटॉप ये लेटे हुए हैं ना, तो आप इनका वेट देख लें या ये अपने किसी काम में लगे हुए हैं या कोई भी यूट्यूब पर हैं, क्या करें. तो असल डेफिनेशन क्या है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की? व्हेन समवन स्पेंड 6 or more hours per day sitting or lying down and they lack significant physical movement in their daily life. तो this is called sedentary lifestyle. तो 6 घंटे, आप कितने लोग हैं जो 6 घंटे 8 घंटे ऑफिस वर्क करते हैं, वो बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, इस वजह से दे आर गेनिंग वेट. So the second risk factor which is very important and this is related with the physical inactivity, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये बात बताई, ओवरवेट एंड ओबेसिटी. 58.1% पाकिस्तानीज आर ओवरवेट and 43.9% are in the obese category.
It is alarming. This is WHO report. It is alarming that around 40% of children in Pakistan are overweight or obese. इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर भी, और ये हमारी, क्योंकि अब मेरे पास, क्योंकि मेरे ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, तो मैं तो सिर्फ आपको छोटी छोटी ब्रीफली सारी बातें बता रहा हूँ. जब हमारी एक स्टडी हुई थी जो आपकी, उसमें आपको पता चलेगा कि ओबेसिटी रेट कितना है. This is also very important. This risk factor, family history, first degree relatives क्या होते हैं? Your mother, father, sister, brother with diabetes and your children. तो ये first degree relatives कहलाते हैं. And you are more likely to get diabetes yourself. You are also more likely to have pre-diabetes. तो जहां आपने, यानी अगर first degree relatives में history मिल रही है, तो you are more likely to develop pre-diabetes and diabetes. And type 2 diabetes has a strong link to family history in lineage than type 1. And studies of the twins have shown that genetics play a very strong role in the development of type 2 diabetes. Race can also play a role. But type 1 diabetes, in type 1 diabetes, activation of T and B cell autoimmune response against beta cell is triggered by environmental factors. तो ये autoimmune disease है which is triggered by the environmental factors, for example infections and toxins in genetically predisposed individuals. This result in beta cell destruction and patient will develop type 1 diabetes. And 90% of type 1 diabetics, type 1 patients, they have circulating antibodies, and few 10% or 8% of type 1 diabetics, they don't have autoantibodies. This is another important risk factor, urbanization. Urbanization studies have shown that urbanization is associated with increased, यानी अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए. लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है कि इज एसोसिएटेड, दिस अर्बनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिच फूड्स एंड डिक्रीज इन एनर्जी एक्सपेंडिचर. क्योंकि जो गाँव में लोग होते हैं, पहाड़ी इलाकों में लोग होते हैं, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, गाँवों में काम कर रहे हैं, खेतों पे काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं. अब वो जब शहरों में आकर बस जाते हैं तो वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इख्तियार कर लेते हैं, उनको खाने पीने की एक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है. लिहाजा दिस अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू ओबेसिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. An elderly population, yes, this elderly population has a higher prevalence of diabetes and pre-diabetes than the young and middle-aged, and more likely to develop complications in the cardiovascular, retinal and renal. अब इसके बहुत सारी reasons हैं. Aging process है जिसमें beta cells की भी aging हो रही है, और दूसरा sedentary lifestyle हो जाता है, insulin resistance भी है. तो बहुत सारे factors इसमें combine होकर elderly population के अंदर ये एक risk factor बना देते हैं. ये इसको हम और अच्छा डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं. इसको मेडिकल टर्म्स के अंदर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. दैट इज़ अगर 75 ग्राम्स ग्लूकोज आपने चैलेंज दिया और उसके बाद आपने देखी कि या उससे पहले आपने फास्टिंग चेक की, फास्टिंग इज़ अबव 100 एंड लेस देन यानी 126, तो ये IFG कहलाता है. और IGT अगर किसी का आफ्टर गिविंग 75 ग्राम्स लोड चैलेंज आपने दिया और उसके 2 घंटे के बाद आपने अगर शुगर चेक की, इफ़ इट कम्स बिटवीन 140 to 199, तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री डायबिटीज़ इज इट कैन लीड टू डायबिटीज़ वेरी सून. So this is the recap of risk factors for type 2 diabetes. You can, very beautiful picture, you can see all the risk factors. फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो डायबिटीज़ हो सकती है. BMI हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी जो एशियंस हैं उनका अगर 23 से ज़्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर्स है. इनएक्टिव, ये मैं डिस्कस कर लिया मैंने. हाई ब्लड प्रेशर, ये कोमॉर्बिड है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को ये रिस्क फैक्टर. हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हैव ए हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, एज
above 35 or 40 have impaired glucose, ये हमने सारे, ये मैंने इसको स्लाइड इसलिए लगाई है ताकि इसको रिकैप कर लें कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़, दे कैन लीड टू डायबिटीज़. Briefly, and now I will discuss the classification, summarize the classification of diabetes. Diabetes, we can classify the diabetes into type 1 diabetes, which is an autoimmune destruction of the beta cells, and the type 2 diabetes. I have discussed the definition of type 2, gestational diabetes mellitus, and other specific. So we can divide the diabetes into these 4 categories. Type 1, दिस इज 5 to 10% ऑफ ओवरऑल डायबिटीज, यानी पूरी दुनिया के अंदर से 5 से 10% टाइप 1 डायबिटिक्स होंगे. तो ये एक स्पेशल यानी डिजीज़ है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज. ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं 85 to 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स. स्ट्रॉन्ग HLA एसोसिएशन होती है इसमें. एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द सिक्रेटरी डिफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. 90% ऑफ ऑल डायबिटिक्स केसेस, ये पूरी दुनिया के अंदर जो डायबिटीज़ है उसमें 90-95% जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है. एंड लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कि हमें समझने के लिए है और हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, प्राइमरी केयर फिजिशियंस को समझने की है कि टाइप, ये पहले हम आज से 30 साल पहले जब डेविडसन्स पढ़ते थे, 40 साल पहले जब हमने डेविडसन्स पढ़ी तो उसमें ये लिखा होता था कि टाइप 1 जो है वो बच्चों की बीमारी है, टाइप 2 जो है वो बड़ों की बीमारी है. तो दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू नाउ. May occur, type 2 diabetes may occur in children and adolescents, but usually begins in people older than 30 and becomes progressively more common with age. Obesity is the main risk factor in type 2. Obesity leads to, ये हमने सब, obesity and insulin resistance, ये इनका चोली दामन का साथ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ होंगे. Obesity है तो insulin resistance होगी, insulin resistance हो गई, patient will develop sooner and later diabetes. Symptoms tend to be more gradual and or undiagnosed. ये बहुत यानी इम्पॉर्टेंट बात है, ये जुमला आप बहुत नोट कर लें कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, डायग्नोज होती है जब कोई चेकअप होता है मेडिकल, ग्रेजुअल होता है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पॉलीयूरिक हो, पॉलीडिप्सिक हो या कोई और कोई सिम्टम्स हो, नहीं होते. पेशेंट्स यही समझ रहा होता है कि जी हमें पता नहीं. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनअवेयर ऑफ इट, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते. Gestational, few points about the gestational diabetes. Any gestational diabetes, any degree of, जिसकी definition है, any degree of the glucose intolerance with onset or first recognition during pregnancy. It does not exclude the possibility that unrecognized glucose intolerance may have antedated or begun concomitantly with the pregnancy. तो यूजुअली जो अब इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, प्रेगनेंसी इन डायबिटीज़ इन जनरल, के कुछ पहले से कुछ जो विमेन होती हैं वो पहले से ओबीज़ हैं, उनको पहले से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उनको पहले से डायबिटीज़ है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डायबिटीज़ फर्स्ट विजिट के अंदर डिटेक्ट हो जाती है. कुछ विमेन हैं जिनको प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे, जिनको 24 वीक्स के अंदर जब चेक होता है तो उसका क्राइटेरिया है जो इसमें हम OGTT करते हैं. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ इंशाल्लाह इसको डिस्कस होगा सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर, तो आपको इससे ही पता चलेगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज किया जाता है. रिस्क फैक्टर्स ब्रीफली, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ओवरवेट और ओबीज, फिजिकल एंड इनएक्टिव, प्री डायबिटीज़ इज अ रिस्क फैक्टर. ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज in gestational diabetes in previous pregnancy, this is also a risk factor for gestational diabetes. And the polycystic ovary syndrome, this will be discussed in the subsequent module lectures. Immediate family members with diabetes, these are other risk factors for gestational diabetes. Previously developed a baby weighing more than 9 pounds, 4.1 किलोग्राम, यानी जिन औरतों के बच्चे जब हिस्ट्री लेंगे अगर बहुत ज़्यादा
उनका वेट ज़्यादा है, तो ये एक निशान, वो लोग ये समझ रहे होते हैं, घर वाले समझ रहे होते हैं कि भी माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त बच्चा हुआ है, तो ये तंदुरुस्त बच्चा नहीं होता, बल्कि ये ख़तरनाक बात होती है कि मदर was having gestational diabetes. Being a certain race or ethnicity, such as Black, Hispanic Americans, and Asian Americans, these are all risk factors. तो ये briefly risk factors थे, और ये हमारे जो another जो classification है उसको briefly बता देता हूँ कि जो other specific types हैं उसमें बहुत अब common जो नाम आपको मिलेगा monogenic diabetes का, जिसमें एक सिंगल जीन डिफेक्ट होता है, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ बीटा सेल फंक्शन, उसमें मोडी का नाम आप सुनेंगे, मोडी को हम थोड़ा सा सब्सिक्वेंट में डिस्कस करें। सिमिलरली इन इन्फेंट्स यानी न्यूली बोर्न टू 6 मंथ्स, उसमें जो डायबिटीज़ होती है, दिस इज ऑल्सो मोनोजेनिक डायबिटीज़। एंड डिजीज़ ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियास, एक तो हमने पेनक्रियाटिक जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का उसको डिस्कस कर लिया, तो वो असल डिफेक्ट था। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेनक्रियाटेक्टोमी हो जाती है, पेनक्रियास पूरा डैमेज हो जाता है, तो ही और शी कैन डेवलप diabetes. Cystic fibrosis is a disease which can lead to the pancreatic problem, neoplasia, and hemochromatosis. All these will lead to the pancreatic problems and will lead to the insulin deficiency. Other endocrinopatologies, acromegaly, Cushing syndrome, and glucagonoma, hyperthyroidism, these all pheochromocytoma, these are the other reason. And some drugs may cause diabetes, like especially the steroids and the thyroid hormones, dioxazide, beta agonist, thiazides, phenytoin, alpha interferon, others. These all drugs are claimed to, especially the steroids and the some drugs which can lead to drug-induced diabetes. Infections, congenital rubella and cytomegalovirus are claimed to cause diabetes. Other genetic syndromes that are sometimes associated with diabetes, Down syndrome and Klinefelter syndrome, these are the syndromes which can be looked for the diabetes mellitus. So I finish over here. I think I suppose I have covered briefly the objectives and the description of the course, and few words on the definition and the character of diabetes, and then the prevalence, global and the regional prevalence, and then I discussed in detail the risk factors, and I summarized the classification. So I finish over here. If you have any question, अगर आप लोगों को कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो इस प्रेवलेंस के बारे में और रिस्क फैक्टर्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया, तो इसमें और शुरू में जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन बता दिया, तो ये जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स को, हमारे लेक्चर्स को सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जिसमें मैं हेड कर रहा हूँ, और मेरे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा हैं और हमारी एक डाइटिशियन है, तो हम तीन ने मिलकर ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। और वी होप कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारी कॉम्प्रिहेंसिवली डायबिटीज़ का सारी नॉलेज, स्किल्स डेवलप हो जाएं, टूल्स आपको पता चल जाएं, कैसे डायग्नोस करना है और मैनेज कैसे करना है और प्रेवलेंस क्या है। तो ये वो स्टैटिस्टिक्स भी आप हमें सबको पता होनी चाहिए, ताकि हम जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर भी हम फोकस हों, और हमारा पूरा मुल्क जो एक यानी एक तरह से एपिडेमिक है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इस एपिडेमिक से हम कैसे निजात पाएँ इंशाल्लाह। तो आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, और जो भी मैंने बातें की और उसको हम और इंशाल्लाह ऑन साइट अगर आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम आपसे और बात भी होगी, और इंशाल्लाह इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क क्वेश्चंस एंड बाय सेंडिंग to our emails by our IT department. Thank you very much. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.